اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا. دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے. اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا, سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے, اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں اور نئے نئے ہمارے ترجمے, اور میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں. کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے تو گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا؟ تو مذاق کر رہا ہے تو دین کے ساتھ. کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے میں غریبوں کو دے, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ. حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا. حضور رحمت للعالمین ہے نا, تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے. حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا. حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھا, کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے. مہلت سے فائدہ اٹھا, اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں, میری بڑی عقل ہے, میں کہیں الجھ نہیں رہا, میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا. یہ مہلت ہے, فائدہ اٹھا, ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید, پھر اس کی پکڑ سخت ہے. توبہ کر لے, مہلت کے وقت توبہ کر. کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی, میں جی کرتا ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا. میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ, میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا. میں نے تجزیے پڑھے ہیں, مجھے یقین نہیں آتا, ویسے میں نے تجزیے پڑھے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ ہے, اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. فرماتے میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں, میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا. فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی, اس سے میں نے سود لینا تھا, میں اس کی دکان پہ گیا, پیسے رکھ. اس نے کہا یار مہلت دے. نہیں ہے. کہا ادھر پیسے رکھ. یار نہیں تیری مہربانی. کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار, لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے. کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لایا, میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آ جا. کہتے میں گوشت گھر لایا. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی, اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا. میری بیوی چلائی, کہنے لگی جلدی آ, تو بھی برتن لا, بچے بھی بلا, میں بھی بیٹھتی ہوں. یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا, آج خون پیئیں گے سارے, آ جا. کہتے ہیں اب میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے, کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے. مہلت کے وقت توبہ کر, کہیں سزا نہ شروع ہو جائے, آج بچ جا. فرماتے آواز گونجی, میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی. میں تڑپا, بچے گود میں بٹھا کے میں کھل کے رویا. میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا. کہنے لگی جا پھر, توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے. تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے. جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے, تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے, تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے. کہتے میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے. ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے, ایک بچہ پکارا, کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹو, بہت بڑا سود خور ہے یہ, ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نحوست والے ہو جائیں, پیچھے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے, یہ بھی. فرماتے حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر رکھ کے میں بڑا رویا. میں نے کہا میرے لیے دعا کر, عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے. پتہ سارا ہے سردار نو کیتی آندا, پردہ چپایا ہی پلا اسی, دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے, مہربانی کر. کہتے حضرت حسن بصری نے کہا تجھے مبارک ہو, میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا. میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس, تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری تو جا, اللہ بڑا مہربان ہے. کہتے تسلی دی.
प्यार किया, खरी तौबा की, बायत हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे। फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ पीछे, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से कोई मिट्टी उड़े और वली के कपड़ों पे पड़ जाए और हम अल्लाह के वली के बेअदब हो जाए, पीछे हटो, रास्ता दे दो। फरमाते मैं अल्लाहु अकबर कहा, मैंने कहा मालिक तेरे कुर्बान जाऊं, अभी मैंने तौबा की और अभी तूने अपनी मखलूक के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए, अभी। भाई तौबा खरी सच्ची, मोहलत के वक्त तौबा करो। फिर जब वो वाला वक्त आता है ना, जब सजा शुरू हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुखों में दुआएं मांगा करो, रब दुखों में जल्दी कबूल करेगा। सुखों में मांग लो, दुखों में जल्दी कबूल होंगी। तुम सिर्फ दुखों में मांगते हो, फिर हिकमत इलाही के तहत देर होती है। भाई पहली वली की सिफ्त यह है कि वो तौबा करने वाले होते हैं। वली की पहली सिफ्त क्या है? इकबाल ने कहा था, उसने कहा मुरीद सादा तो रो रो के हो गया ताइब, काश इस पीरे मुगा को भी मिल जाती तौबा की तौफीक। उसने कहा अल्लाह करे पीर भी तौबा कर ले, मुरीद तो बड़ा रो गया बेचारा, अल्लाह करे ये भी तौबा करे, ये भी बाज आए। तौबा इंसान को नवाजती है हर वक्त, हर जुमले से, हर बात से। और ऐसी गलतियां जिनका हमें पता है उनसे तो करनी है, जिनका नहीं भी पता उनसे भी। अब क्या करें? अत्ताइबून अल आबिदून, अब अल्लाह की इबादत करें। वलियों की दूसरी सिफ्त क्या है? वो अल्लाह की, हमारे जमाने में नफलों का रिवाज ही खत्म हो गया है। असर की पहली चार सुनते हैं, शाह की कितने फीसद लोग पढ़ते हैं? हमारे बुजुर्गों का तरीका था, घरों में हुजरे मखसूस होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नवाफल घरों में भी पढ़ा करो। वो अजानों से पहले वुजू करके बैठे होते थे, मुसल्ले आबाद होते थे, और बहुत सारे बुजुर्गों की कब्रें उस जगह पे बनी जहां वो इबादत करते थे। नफलों से दूर है हम, नफलों से। नफल से क्या मिलता है? नफल पढ़ने से रब रहमान मिलता है, अल्लाह मिलता है नफल पढ़ने वाले को। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु। लेकिन शर्त यह है कि नफल अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। वो सारी दुनिया को सवेरे बताए ना कि जो मैं सवेरे 3 बजे उठिया ना, उदो मैं वेख्या थे कुत्ते भौंक रहे सन। ये तूने खबर दी है कि मैं सुबह 3 बजे ना, ये किसके साथ राज है? बोलिए। बड़ी जबरदस्ती बात बंदे बद के बंदा ढूंढ रहे होते हैं, कोई बंदा मिले तो उसे बताए। ਅੱਜ ਜੀ मैं सवेरे सवेरे उठिया, सवेरे सवेरे ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਫਲ ਪੜਨ ਉੱਠੇ ਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣ ਉੱਠੇ ਸੋ? तो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਠੇ ਸੋ करो, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ रहने दो, अपना काम करे। वो असल मसला पता क्या होता है कि वो गुबार चढ़ा हुआ है तबीयत में कि किसी तरीके मैं बता दूं कि मैं सवेरे 3 बजे। तो इसका नुकसान पता क्या होता है? इसमें शराकतदारी हो गई, और अल्लाह को शराकतदारी पसंद ना। तो वो अपने रब के साथ राज न्याज का, वो इबादत का सवाब बढ़ जाए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा कसरत से नफल पढ़ता है तो अल्लाह के करीब हो जाता है। कितना करीब होता है कि अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, फिर मैं उसके पैर बन जाता हूं, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, फिर मैं उसके कान बन जाता हूं, फिर उस शख्स का वजूद बन जाता हूं। क्या मतलब? ये बुखारी मुस्लिम है। आंखें बंदे की होती है, ताकत अल्लाह की होती है। हाथ बंदे के होते हैं, ताकत अल्लाह की होती है। पैर बंदे के होते हैं, ताकत अल्लाह की। तो फिर अगर कोई वली दूर से सुन ले तो ताकत किसने दी है? तो अगर कोई वली दूर से देख ले तो ताकत किसने दी है? अल्लाह ने। अगर कोई वली हाथ बढ़ा के किसी की परेशानी दूर कर दे तो ताकत किसने दी? ये पीछे ताकत किसकी है? अल्लाह की। तो ये बुखारी मुस्लिम है। अल्लाह की इबादत करें, इबादत से बरकत आती है। हजरत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुआज बिन जबल के शागिर्द थे, ताबी थे, ताबी बुजुर्ग थे। फरमाते हैं कि मैं जब से हजरत मुआज बिन जबल की सोबत में बैठा ना तो बुरे कारोबारों से मेरी तबीयत तो चाट हो गई। कई कारोबार में देखता तो झूठ बोलना पड़ता, उसमें बड़ा कुछ करना पड़ता, तो मुझे डर आता। आप फरमाते मैंने ना बड़ी कोशिश की पर मेरी मर्जी का काम मुझे, सूफी काहिल नहीं होते, सुस्त नहीं होते, झूठ नहीं बोलते।
फरमाते मेरे अंदर ताकत थी कि मैं हलाल कमा के बच्चों को खिलाऊं, पर मेरी मर्जी का काम नहीं मिलता था। हाथ हो गई। और जब इंसान नेकी की तरफ आता है तो कुछ न कुछ आजमाइशें जरूर आती हैं, ये पक्की बात है, पक्की बात। जब वो गलत मलत कर रहा होता है तो उसको लगता है सारा कुछ सही है, जब सीधा होता है तो बहुत सारी परेशानियां भी जरूर आती हैं। ये मिजाज है दीन का। आप फरमाते मैं परेशान रहने लगा, हालात खराब होने लगे, आजमाइश सख्त होने लगी, कारोबार बंद हो गया, काम ही कोई नहीं मिलता था। मेरी बीवी नाराज रहने लगी, हल्का हल्का तो उसने मुझे कहना शुरू किया, फिर जलाल में आ गई। और एक दिन मुझे कहने लगी अगर आज नाना कुछ लेके आए तो बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। आप फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ, निकल गया फजर पढ़ के काम की तलाश में। मैंने जोहर तक तलाश किया लेकिन मुझे काम न मिला। आप फरमाते नहर फुरात के किनारे तपती हुई रेत पे मैं बैठा था तो मेरे दिल में ख्याल आया बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो आज अल्लाह की न कर ले, आज अल्लाह की मजदूरी न करे। आप फरमाते मैंने गर्म रेत से तयम्मुम किया, वुजू किया वहीं फुरात, और गर्म रेत पे कपड़ा बिछाया तो नफल पढ़ने शुरू कर दिए। जोर से असर तक नफल पढ़े, जोर से। चले मैं एक दुआ करता हूं, आप आमीन कहना। अल्लाह करे कि हम मगरब के बाद वाले नफल ही पढ़ने शुरू कर दें। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का हाल देखे, इबादत का हाल देखे। फरमाते मैंने कहा आज अल्लाह की मजदूरी करे, जोर से असर तक नफल पड़े गरम रेत पे। और जब असर हुई ना तो मैंने अपने रुमाल में ना थोड़ी सी रेत बांध ली। घर की दीवारें छोटी छोटी थी। मैंने कहा बीवी ने देखा ना खाली हाथ आया है तो अंदर से शोर करेगी, हम साहे भी सुनेंगे, तो चलो जब देखेगी ना रुमाल में कुछ है हौसला करेगी, जब अंदर जाऊंगा तो समझा लूंगा। आप मुस्कुरा रहे हैं ना हल्का हल्का, इसका मतलब है इन बातों में काफी सदाकत है। पुराने बुजुर्ग कर गए तो इसका मतलब ये है कि इनमें बहरहाल काफी हद तक सदाकत है। ये शोर होते रहते। कहते मैंने वो कहा कि चलो दूर से देखेगी तो घर जाके समझा लूंगा। आप फरमाते पहले मेरी बीवी दरवाजे पे बैठी रहती थी, बच्चे बैठे रहते थे, मुंतजिर होते थे कि कुछ लेके आए, घर में फाका होता। आज मैं गया तो शोर ही कोई नहीं, कोई शय नजर ना आई। वो रेत से भरा हुआ मेरा पल्लू मैंने दरवाजे के साथ रखा, अंदर चला गया। बीवी को आवाज दी कहां हो? कहने लगी मुंह हाथ धो लो, मैं रोटी लेके आई। हाथ धो गई, रोटी किधर से आई? इस घर में तो फाके थे, खाना किधर से आया? कहते रोटी लाई, सलाद भी लाई, दूध भी लाई, उस जमाने में जो नेमतें थी फल भी लाई, सारा आ गया। मैंने घूर के देखा, मैंने कहा किधर से आया ये सारा कुछ? कहां है बच्चे? कहने लगी रोटी खा के बाहर निकल गए। मेरे दिल में ख्याल आया मेरी बीबी का किरदार तो चांद से ज्यादा उजला है, तो ये सारा कुछ कैसे आया? मैंने कहा ये कहां से आया सारा कुछ? तो कहती है मेरी तरफ देख के कहने लगी पता नहीं आज किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की मजदूरी पे चले गए थे। जोर हुई है तो उसने अनाज की बोरियां भेजी है, चावल भेजे हैं, फल भेजे हैं, इतना कुछ भेजा है कि मेरे घर में रखने को जगह ही कोई नहीं। ये कहते कहते उठी और कहने लगी पहले ही बड़ा आया था, अब और क्या लाए हो? आप फरमाते मैं सख्ते में था, उसने जाके मेरा रुमाल जो खोला, मैं रेत लाया था, रब करीम ने हीरे बना दिए, वो हीरे बन गए। आप फरमाते कहने लगी किस करीम की मजदूरी पे गए थे? फरमाते मैं उठा और कच्ची जमीन पे सर सजदे में रखा। मैंने कहा मालिक मैं सारी जिंदगी दुनिया राजी करता रहा, लोगों के दरवाजों पे खड़ा रहा, ताल्लुकात बनाकर थोड़ी सी रोजी के लिए जद्दोजहद करता रहा, धुतकारा गया, सताया गया। मौला मैं तो तेरे दरवाजे पे आज आया हूं, पूरी दिहाड़ी भी नहीं लगाई, जोर से सब ड्यूटी की है, अल्लाह तेरी थोड़ी मजदूरी का इतना अजर मिलता है? खुदाया तो इतना नवाजता है। फरमाया अल्लाह मैं मेहनत भी करूंगा, काम भी करूंगा, लेकिन दुनिया की मजदूरी थोड़ी करूंगा, मालिक तेरी इबादत ज्यादा करूंगा। भाई याद रखो हम सारी जिंदगी लोग कब्रों में चले गए, मस्जिद नहीं आए, कब्रों में अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र में जाने का टाइम आया, लोगों की नमाजें पढ़ दी गई पर लोगों ने नमाजें शुरू नहीं की, नमाजें पढ़ दी। कहीं ले जाओ, शादी का मौका है तो वो कराची जाने को तैयार है,
लेकिन चंद फरलांग पे मस्जिद है, मस्जिद जाने को तैयार अल्लाह के वली की अलामत है, वो इबादत गुजार होता है। और जो ना नमाज पढ़े ना नमाज पढ़ाए वो जिंदीक तो हो सकता है, पीर हो सकता, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिंदीक तो हो सकता है पर पीर हो सकता बिल्कुल बेदीन है, बल्कि बददीन है, पीर हो सकता। इसलिए कि अल्लाह के वली की अलामत यह है कि उसके चेहरे पर इबादत की रोशनी होती, तकवे का हुस्न होता है, तकवे का, परहेजगारी का नूर होता है। अल्लाह के बंदे तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू करने वाले, सुजूद करने वाले, ये उनका जाती फेल है। और यहां वो बस नहीं करते, अल आमिरून बिल मारूफ, अब नेकी का हुक्म देंगे, वन्नहूना अनिल मुनकर, और बुराई से। ये पीर तो किसी तहरीक में निकलते ही नहीं, बड़े बड़े गद्दियों के पीर जो है ना, बड़े बड़े, कभी आपने देखे किसी जुलूस में आते हुए? जी चले कुछ दरवेश ऐसे हैं जो अपनी तबीयत के तकाजे के मुताबिक नहीं आते, लेकिन वो उम्मत की मजलूमियत से बेखबर नहीं होते। वो एक अलग बात है कि वो इबादत गुजार है, वो वैसे ही नहीं निकलते, वो चले एक, लेकिन वो मुरीद अगर बुलाए तगड़ा तो पिशावर भी चले जाए, हैं जी, लंदन का भी दौरा कर रहे हैं, अमेरिका भी हुआ है। सुने भाई सुने, ये कुरान मजीद, ये सिफ्तें कौन बयान कर रहा है वलियों की? कौन बयान कर रहा है? तो किसी मलंग की माननी है कि अल्लाह की माननी है? तो अल्लाह कह रहा है कि वली की सिफ्त ये है, वो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से। पीर साहब अमेरिका चले जाते हैं, लंदन यूरोप चले जाते हैं, लेकिन किसी तहरीक में नहीं, किसी में नहीं। नमूसे रिसालत की बात आई, पीर सोए रहे। कौन थे सड़कों पे? पीर थे कि मौलवी थे कि नाथ खां थे, कवाल थे जिनको सरमाया खा गए जो सारा हमारा, ये लोग थे। तहरीक खत्म नबूवत में डंडे किसने खाए? उलमा ने। गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तहरीक चली तो सड़कों पे कौन निकला? तहरीक खत्म नबूवत। बताओ ना, किसी पीर का बयान दिखाओ मुझे जिसने कहा हो। थक गए गले, हमारी रिकॉर्डिंगें ला ला के लोग हमें सुनाते हैं, कहते हैं जनाब आपकी सख्त तकरीरें नोट हो रही हैं और सोशल मीडिया पे दूर दूर जा रही है, थोड़ी एहतियात करें। तो मैंने कहा यार किस तरह एहतियात करें, कैसे एहतियात करें? जिस कुत्ते को उसका मालिक 4 रोटियां डालता है वो सारी रात आवाजें दे दे के गुजार देता है कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। हमने तो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का खाया है, तो तेरे कहने पर ख्याल करें, तेरे कहने पर यह कैसे हो सकता है? कुत्ता नहीं कर रहा नमक हरामी और तू हमें मशवरा दे रहा है? जिन्ना तना विच इश्क न रचिया कुत्ते होना थी चंगे, और मालक देकर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। हमसे कोई आदमी नरमी की उम्मीद ना रखे। तुम गैरत ईमानी को ललकारो, हम चुप करके बैठे रहे। खत्म नबुव्वत की बात करो, हम खामोश रहे। नामूस रिसालत की बात करो, हम खामोश रहे। दीन फरोश और होते हैं और दीन के चौकीदार और होते हैं। और अगर आओगे ना कभी मुंह डाल ले दीन के मामले में, तो चौकीदार तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर मार ना सके तो मार जरूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, यह इरादा है और ये वादा है इंशाअल्लाह ताला। मार ना सके तो मारे, हाँ ये याद रखो। कोई आदमी हमसे कमजोरी की उम्मीद ना करे, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह, एक बच्चा तबला सरंगी बजा रहा था, हजरत गुजरे, उसके हाथ में बांसुरिया भी थी। फरमाने लगे बंद कर, बंद कर, मैं नहीं बजाने दूंगा, मेरी मौजूदगी में तू बजा ही नहीं सकता। मैं नायब हूं अपने नबी पाक का, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बुराई कर नहीं सकता था। नबी का मनसब होता है, वो मना करते हैं। अगर नबी मना न करे तो वो चीज जायज हो जाती है, हदीसें तकरीरी बन जाती है, उसूल में आ जाती है। फरमाया हजरत बंद कर। उस नौजवान ने वो बाजा उठाया और हजरत बायजीद के सर पे दे मारा। आपका सर भी फट गया, बाजा भी टूट गया। हजरत बायजीद अलैहिर्रहमा घर गए। घर जाके 2 घंटे के बाद हलवा पकाया, खादम को बुलाया, फरमाया उसके घर जा, ये थोड़े से पैसे दे या, उसका बाजा टूट गया, उसका नुकसान हो गया है, उसे नुकसान के पैसे दे और हलवा दे या, उसका दिल राजी हो जाए। और साथ उसे ये कह देना कि हजरत बायजीद बुस्तामी कह रहे थे हलवा भी खा ले, पैसे भी रख ले, पर दोबारा बाजा खरीद के बजाना ना। अगर दोबारा बजाया तो मैं फिर मना करूंगा। मैं बाज
मैं तुझे रोकूंगा, मैं हौका देता रहूंगा, मैं ऐलान करता रहूंगा, मैं दीन के मामले में बात करूंगा, मैं रोकूंगा, मैं बाज। एक दरवेश थे हजरत इमाम आदम के शागिर्द, बादशाह तपला सरंगी बजा रहा था, बादशाह। तो पहुंच गए बादशाह के, उठा के ना वो तपला सरंगी तो जोर से मारा, जमीन पे टूट गया सारा कुछ। बादशाह ने शेर रखा हुआ था, शाम का वक्त था, कहने लगा इस मौलवी को पकड़ो, पिंजरे में डालो ताकि शेर खा जाए। उठाया, बाबा जी को पिंजरे में डाल दिया। सारी रात तपला सरंगी बजता रहा। सवेरे फजर का वक्त हुआ तो उठे गवैये जाने लगे। तो बादशाह कहने लगा पता करो बाबे के जूते शूते कपड़े कुपड़े जो बचे बाहर निकाल लो। लोग कहते हैं हम गए, जब पहुंचे ना शेर के जंगले में तो बाबा जी फजर की नमाज पढ़ रहे थे और शेर उनके पैर चाट रहा था। फरमाते हैं पैर चाट रहा था तो बाहर निकले तो बादशाह भी परेशान, सारे लोग परेशान, ये क्या हुआ? कहने लगे बाबा तुझे शेर ने काटा नहीं, खाया नहीं, और तू इतने इत्मीनान से नमाज पढ़ रहा, तुझे ख्याल नहीं आया? बाबा जी कहने लगे हाँ ख्याल आता रहा है, सारी रात परेशान रहा हूं। सारी रात का किस बात का ख्याल? फरमाने लगे ख्याल ये आता रहा है कि मैंने पढ़ने होते हैं सारी रात नफल, तो मैंने नफलों की नीयत बांधी तो शेर मेरे पैर चाटने लगा, तो इसका जूठा नपाक होता है। बस सारी रात इसी टेंशन में गुजर गई है कि पता नहीं मेरी नमाज हुई है कि नहीं हुई। मैं यही सोचता रहा हूं सारी रात कि पता नहीं नमाज हुई कि नहीं हुई। बादशाह कांपने लगा, कहने लगा बाबा तू डरा नहीं, शेर ने काटा नहीं? तो आप फरमाने लगे तू जब किसी को सफीर भेजता है तो तेरे सफीर को कोई कत्ल करता है, कोई बादशाह पकड़ के मारता है? कहा नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगा उसे पता है बादशाह का नुमाइंदा है। आप फरमाने लगे बादशाहों के नुमाइंदे तगड़े होते हैं, मैं तो रब करीम का दोस्त हूं, तो जिस रब करीम के दीन के लिए मैं निकला हुआ मुझे लवारस छोड़ देगा, मेरी परवाह ही नहीं करेगा? मैं खबरदार, आज के बाद अगर तूने गैर शरई हरकत की तो फिर तुझे टोकूंगा, फिर तुझे रोकूंगा, फिर तुझे मना करूं। अल्लाह के वली मैदान अमल में रहते हैं, वो नाजायज चीज से रोकते। ये पता है ज्यादा मजमे क्यों लगते हैं, ज्यादा दरबारों पर रश कब पड़ता है? उस वक्त पड़ता है जब जो आता है ना उसको जी कहा जाता है, लंगर, बस तेरा काम हो जाएगा, तेरी शिफा हो गई, तेरा बेटा हो गया, तो रश हो जाता है। जो आने वाले को कहे ना पहले नमाजें पर 5, दाढ़ी रख, दीन सीख, अल्लाह अल्लाह कर, वहां रश नहीं होता। कहते पीर साहब की तो करामत ही कोई नहीं, तो मौलवी है, तो सीधी सीधी नमाजें पढ़ा रहे हैं। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नुमाइंदा होता है अल्लाह का वली, वो सारी जिंदगी अल्लाह की हुदूद के कयाम के लिए जद्दोजहद करता है। इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी है, इमाम अहमद बिन हंबल ने जेल काटी। आप फरमाते हैं बादशाह वक्त ने उसको, मैंने गलती पे रोका तो मुझे कैद कर लिया, और कैद किया जब उसने तो जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतनी जेल काटी, इतने कोड़े मारे कि इमाम अहमद बिन हंबल का सारा वजूद खून से भर गया, कपड़े सारे खून से आलूदा हो गए। एक शख्स इमाम साहब से कहने लगा जब आप वापस आए ना रिहा होके, कहने लगा हुजूर इतनी मार खाई आपने, इतनी, ना बादशाह को रोकते तो क्या होता? वो शख्स कहता है मैंने इमाम साहब के वो कपड़े, वो कुर्ता खून से भरा हुआ पड़ा हुआ था। इमाम साहब कहने लगे चल तू छोड़, मुझे क्या मिला नहीं मिला, ये मेरा जरा कुर्ता तो उठा के रख, कुर्ता तो उठा के सीने से लगा, कंधे पे रख। कहते इमाम साहब का खून से भरा हुआ कुर्ता मैंने जो कंधे पे रखा तो मुझे रसूल पाक का दीदार नसीब हो गया। तो इमाम साहब फरमाने लगे तूने तो अभी कुर्ता रखा है तो दीदार मिला है, मुझे पूछ जब मैं रसूलुल्लाह के नाम पे मार खा रहा था तो कितने जलवे मुझे नसीब हुए, मुझे पूछ कितने जलवे मैंने देखे हैं। तो अल्लाह के बंदे हुदूदुल्लाह के मुहाफिज होते हैं। जिंदगी में कई दफा लोग नहीं मानते। दाता साहब ने लिखा है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को मिस्र के लोगों ने नहीं माना, क्योंकि आप जो बंदा भी नाजायज काम करता था मना करते थे, लोगों ने नहीं माना। मानते उसको है लोग जो हाँ में हाँ मिलाए, जो ताबेदार होके रहे, उसको जुन्नून मिस्री को नहीं माना। फरमाते माना लोगों ने उस दिन जिस दिन उनका जनाजा उठा। क्यों? जब हजरत जुन्नून मिस्री का जनाजा उठा तो गर्मी बड़ी सख्त थी, सख्त गर्मी थी। दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा है
کہ پرندے کتار در کتار آئے اور جناب ذوالنون مصری پہ سایہ کر دیا، سایہ ہو گیا، ٹھنڈ ہو گئی۔ اوہو، لوگوں نے کہا تو ولی کامل تھا، تو ایک عام مولوی سمجھ کے ساری زندگی پیچھے رہے، تو کامل تھا۔ کہتے ہم لوگ دوڑے، رش ہو گیا جنازے میں، اور جنازے کے بعد اب لوگوں نے ارادہ کیا کہ زیارت کرتے ہیں۔ تو جب حضرت کا چہرہ اٹھایا تو ان کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں مر گیا ہے، یہ محبوب ہے اللہ۔ ساری زندگی ان لوگوں نے پیغام حق دیا، اور جس کو جو نہیں مانا اس کو دعا دی، دعا دی۔ حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ راوی میں دریا میں جا رہے تھے، کسی جگہ بھی آپ کسی سمندر میں دریا میں آپ جا رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے تھے تو سر پہ نا آپ نے سارے بال منڈوائے تھے، ٹینڈ کرائی تھی، پگڑی باندھی تھی، تو کچھ نوجوان وہاں سے گزرے حضرت ذوالنون مصری کے پاس ہے، تو انہوں نے بابا جی کی ٹینڈ کا مذاق اڑایا، مذاق اڑایا، وہ دیکھو ٹینڈ کیسی ہے بابا جی، اور پھر بچے تالیاں بجانے لگے، ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ اللہ اکبر، بڑا مزہ آتا ہے دین کے لیے تانا سننے میں، لطف آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے انسان کو۔ انہوں نے مذاق اڑایا تو کشتی قریب سے گزر گئی، آپ کے مرید ناراض ہوئے، کہنے لگے حضور یہ بدتمیز ہے، نالائق ہے، ان کے لیے بد دعا کرے، یہ غرق ہو جائے۔ ماننے لگے یار جانے دو، کہا حضور نہیں کریں دعا، میں جانے دو، کہا حضور کریں دعا، تو دعا سنو اللہ کے بندے کی۔ کہنے لگے اے اللہ، جس طرح دنیا میں یہ ہنس رہے ہیں انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا، انہیں قیامت میں بھی ہنستا ہی رکھنا۔ یہ دعا کیا دی، وہ بچے کشتی موڑ کے واپس آئے، بابا جی کے پیروں میں گر گئے، کہنے لگے توبہ کرا دے، ہم بھی غلام بننا چاہتے ہیں۔ میرے رسول پاک سے صحابہ نے احد کے میدان میں کہا تھا یا رسول اللہ ان کے لیے دعائے ضرر کریں، تباہ ہو جائیں، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، تو نبی پاک نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو رب کریم کا بندہ اللہ کی حدود کا محافظ ہوتا ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی ان صفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ ولی کون ہے، یہ صفات قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب جو ان صفات کا حامل ہوگا اس سے پیار کرنا پڑے گا، اس سے محبت کرنی ہوگی، اس کے ساتھ دل لگانا ہوگا، نسبت جوڑنی ہوگی۔